और उन बच्चों को आज की क्लास से रिमूव कीजिएगा जिन्होंने अभी तक अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई। अस्सलाम वालेकुम मैडम, हाउ आर यू? फाइन। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन सर। आई होप आपकी तबीयत बेहतर होगी। जी मैडम, मैं ठीक ठाक। कह रही से आपकी ये वॉइस कम आ रही है। जी, हेलो। एम आई ऑडिबल सर? जी मिस, आपकी वॉइस ओके। जी स्टूडेंट्स, आपकी थैंक मेंटोर हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। बैच 109 लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश स्पोकन का स्टार्ट हो चुका है। फोकस रखेंगे आज के सेशन में। 8:20 तक ये क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओवर टू यू मिस, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। I'm your mentor Myra Qureshi. I teach spoken English and communication on the platform of LWE. So in today's class, we are going to be doing a lot of things. We are going to be discussing the course outline. We are going to be studying. We are going to get to know each other as well. So ice breaking activities से start करेंगे. I want to know who you are, what's your name, where are you from, what is your hobby or pastime. आई वॉन्ट यू पीपल कि आप लोग चैट बॉक्स को यूज करें और इस आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें so that we may get to know each other and we can start our lecture as well. So what is your name? Where have you joined me from? And what is your hobby? What do you like to do when you're free? When you have a free time? Hurry up everyone, please respond. Very good. So we have Afshan from Islamabad. We have Hafsa Waheed, Javeria Hussain. What do you like to do when you're free? You like to play chess and you like to read as well. Very good. Well done. Okay, so let's get started. It's an English spoken and communication class. It means case class me. We are going to be discussing about spoken English, the strategies which can help us to improve our spoken English and communication, the activities which can help us to get engaged with the language, and we will get to know the course outline as well, which will help us to practically practice all those things. So let's get started. Introduction to the need of language. क्यों जरूरी है हमारे लिए कि हम इस लैंग्वेज को सीखें? फर्स्ट ऑफ ऑल, वी लिव इन अ मल्टीलिंगुअल वर्ल्ड. एक ऐसी दुनिया का हम हिस्सा हैं जहां पर एक से ज्यादा जबान में बात करने वाले लोग मौजूद हैं. It's kind of a world where connections are very important. So if you want to go and get a job, if you want to learn some skill, if you want to become an educated person, every single thing is given in this language. हर वो चीज आपकी, चाहे वो नॉलेज हो, चाहे आप जॉब सेक्टर्स में काम करें, हर एक चीज आपकी इंग्लिश जबान में मौजूद है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न दिस लैंग्वेज. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस लैंग्वेज. The world is becoming increasingly globalized. Now this is something we all know कि हमारी दुनिया बहुत ही तेजी से एक बहुत बड़ी वसी दुनिया से स्क्रैच होके एक बहुत ग्लोबलाइज विलेज बन चुका है. एक छोटा सा विलेज जिसमें हर कोई सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड है. नाउ व्हेन वी आर कनेक्टेड विद अपॉर्चुनिटीज, नाउ दैट वी आर कनेक्टेड विद द कॉन्टैक्ट्स, it's important that we take these opportunities, we talk to them in the language which is dominating in those environments. So dominating environment में जो जबान है आपकी, dominating जबान है जो आपकी English, it's very very important for you to have a good grasp of this language. It's very very important for you to have a good understanding of this language, and it's very important for you that you can speak in this language. You can tell the world about your talents, about what you're capable of. A second language can drastically change your career. Second language acquire करके आप अपने career को change कर सकते हैं. Second language को acquire करके you can basically build a new life for yourself. कैसे? Education sector की बात करते हैं. All of the important things, all kind of advanced knowledge is written in English language. So if you don't know this language, if you can't respond in the language, if you can practice this language, you won't be able to get hold of the knowledge जो कि advanced है, जो कि related है, जो कि recent है. Job sectors की बात करते हैं. Many good companies, चाहे वो पाकिस्तान में लोकेटेड हैं, चाहे वो फॉरेन कंपनीज हैं, आपकी इंग्लिश जबान पर जितनी ज्यादा अच्छी आपकी ग्रास्प है, उसी की बेसिस पर आपको अच्छी पोजीशंस दी जाती हैं. एंड दैट इज ट्रू. द वे यू कम्युनिकेट विद द पीपल
basically decides the kind of the future, the kind of the position you will be holding in that sector. So it's very important for you to learn this language, not only learn it, to understand it, and not only learn or understand it, practice it. So we are going to be practicing this language through this course. An English speaker can enjoy a lot of benefits. One of the benefit is that you have abundant of opportunities out there. अगर आप फ्लुएंट हैं सेकंड लैंग्वेज में, तो आप एक नई जॉब को, एक अच्छी जॉब को ज्यादा जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं. आप एक नई जॉब को, नई अपॉर्चुनिटी को जल्दी ग्रास्प कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज कम्युनिकेशन इज द न्यू स्किल जो हर जगह रिक्वायर्ड है. सो इफ यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल, you can get a new job, you can get a job that will give you a great opportunity to improve your lifestyle. Moreover, आपके chances किसी भी job sector में to negotiate a desirable salary increases. So it's a high demand skill. Communication is a high demand skill, and it's very important. It's the high time for you to learn this skill. According to a recent study, 40% multilingual employees कहते हैं कि उनकी promotions का reason ये था that they were able to speak multiple languages. They were able to communicate in English with their upper hierarchy, with their managers, and they were able to speak or communicate ideas to their teams, to their co-workers as well. And because of this skill, they have earned 19% more than the single language speakers. So now this study proves how important it is for you to understand this language, to hold a strong grasp of this language. So are you ready to learn this language? Are you ready to know what this course is going to offer you? Are you ready to know what this training unfolds? So क्या हम सिर्फ grammar पढ़ेंगे? क्या इस लैंग्वेज में आप इस लैंग्वेज को, इस कोर्स को सीख करके, इस ट्रेनिंग का हिस्सा बन के will you be able to become a fluent language speaker? Will this course help you to land a good job? The answer to all these questions lies here in the course outline of spoken English. So this course outline will clearly communicate to you the goal of this training. This course outline will help you understand that which modules are we going to learn and practice. One thing that I want to tell you people, in तमाम modules में एक add-on feature है, एक additional topics हैं. हमने grammar के तमाम topics की list यहाँ आपके सामने इस कोर्स आउटलाइन में शो की है. इस कोर्स आउटलाइन में along with the grammar आपकी vocab और आपकी pronunciation practices यानी spoken drills daily basis पर होंगी. ना सिर्फ मैं करवाऊंगी, there are AI which we have, जो हमारे पास हैं. आपको AI का एक्सेस दिया जाएगा. आप AI की मदद से अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाएंगे, अपनी फ्लुएंसी को बेहतर बनाएंगे, अपनी लैंग्वेज की एक्यूरेसी को प्रॉमिसिंग बनाएंगे. So this is the course outline which we are going to unfold now. So the topics have been divided into 8 modules. We have total 8 modules which we will be covering, along with pronunciation, along with the practical drills, along with the spoken drills. So first of all, foundations of grammar in communication. बहुत important होता है किसी भी जबान को सीखने में कि हम उसके roots को strong बनाएं. What is grammar? Grammar is the set of rules. Grammar is the set of instructions जिसकी basis पर आपकी पूरी English language stand करती है. So we are going to learn about those foundations which are very easy and you will be able to quickly get hold of them. So module number 1, foundations of grammar, not only in written practices, but in communication practices as well. The role of grammar in effective communication. So communicative aspect of grammar इस पूरी ट्रेनिंग का मेन फोकस है. हम क्या करते हैं हमारी यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में, हमारे स्कूल्स में हमें जो ग्रामर सिखाई जाती है वो हमारे रिटन इंप्रेशंस को, रिटन एक्सप्रेशंस को बेहतर करने के लिए
हमें सिखाई जाती है, हम जो एग्जाम्स देते हैं, हम जो टेस्ट देते हैं, वो सिर्फ उन्हीं स्किल्स को एक्सेस करती हैं, उन्हीं स्किल्स को बेहतर बनाती हैं, उन्हीं स्किल्स पर हमें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है जो हमें एक बेहतरीन राइटर के तौर पर सामने लेकर आते हैं. बट व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन? सो इस ट्रेनिंग में ये एक खास बात है कि हम रिटन पार्ट को ज्यादा फोकस नहीं कर रहे. हमारा पूरा का पूरा फोकस, हमारा जो मेन फोकस है, जो हमारा सेंट्रल फोकस है, वो हमारे कम्युनिकेशन के पार्ट पर है. सो कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर हम पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 1 में. हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन आप कैसे कर सकते हैं यूजिंग ग्रामर. बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है जो आप कन्वर्सेशंस में यूज करते हैं. सो व्हेनेवर यू आर आउटसाइड, यू आर एट होम, फॉर्मल सेटिंग है, आप इंटरव्यू के लिए गए हैं, इनफॉर्मल सेटिंग है, आप एक डिनर पार्टी पर मौजूद हैं, आप अपने दोस्तों के साथ बाहर हैं इनफॉर्मल सिचुएशंस में, या आप अपने बॉस के साथ एक मीटिंग में हैं किसी फॉर्मल सिनेरियो में, कम्युनिकेशन स्टार्टर्स क्या होंगे? हाउ विल यू बी एबल टू स्टार्ट अ कम्युनिकेशन और अ कन्वर्सेशन? And plus, how would you able to extend that conversation? कम्युनिकेशन तो स्टार्ट हो जाती है, कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, बट क्या चीज स्टार्ट नहीं हो सकती, क्या चीज बरकरार नहीं रह सकती? इज योर कन्वर्सेशन. So we will be learning all those texts which will help us to extend the conversation. बात को आगे कैसे बढ़ाया जाए, मजीद इंटरेस्टिंग आइडियाज या टॉपिक्स को अपनी लैंग्वेज के साथ रिलेटिव अंदाज में कैसे ऐड किया जाए ताकि आप अपनी बातों को कंटिन्यू कर सकें. And it all starts with a conversation. So you will be learning what is the basic sentence structure for everyday conversation in formal settings and in the formal settings as well. So ये हमारा मॉड्यूल नंबर 1 होगा. इस मॉड्यूल नंबर 1 में आपके साथ एक्सप्लेनेशंस शेयर की जाएंगी. ऑफ कोर्स आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाएगा. 20 मिनट्स की डेमोन्स्ट्रेशन की क्लास होगी आपकी. आफ्टर दैट आपको टाइम दिया जाएगा, आपके माइक्स ओपन किए जाएंगे और वो तमाम डेमोन्स्ट्रेशन की एक्टिविटीज आप लोग परफॉर्म करेंगे लाइव इन द जूम सेशंस. सो आपके माइक्स ओपन किए जाते हैं, आप उन एक्टिविटीज में खुद पार्टिसिपेट करते हैं. यू प्रैक्टिस स्पोकन इंग्लिश, you practice to speak, you engage in the conversations live with your classmates, live with your mentor, and this is how you learn the language. This is how you practice the language. Module number 2, tenses for real time communication. Very important module. सबसे important module रहा है, चाहे ये written practices की बात में हो, listening की हो या spoken English की हो. जब भी आपने कम्युनिकेट करना है, चाहे रिटन एक्सप्रेशन में या वर्बल एक्सप्रेशन में, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं. लोगों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं, बट कम्युनिकेशन में टेंसेस इतने कंफ्यूजिंग नहीं है. क्यों? बिकॉज कम्युनिकेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर में हम 12 टाइप्स ऑफ टेंसेस को डिस्कस ही नहीं कर रहे. वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस the types of tenses, the forms of tenses जो कि हमसे रिलेटेड हैं, जो कि हमारी कम्युनिकेशन को बेहतर बनाएंगे, जो हमारी कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं. सो tenses for real time communication के मॉड्यूल में we would be learning the basic structure of tenses. We would be learning the conditions where speaker use these tenses, and then speaking drills will be given to you. आपसे कहा जाएगा डायलॉग्स को प्रैक्टिस करने का, आपको बताया जाएगा कि आप किस तरीके से नरेट कर सकते हैं इंसिडेंट्स को, आपसे कहा जाएगा कि अपने बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं, रीसेंट एक्शंस को, हैबिट्स को, पास्ट हैबिट्स को डिस्क्राइब करने में, फ्यूचर प्रेडिक्शंस करने में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस के बारे में बात करने में कैसे आप टेंसेस को यूज कर सकते हैं. सो डेली कम्युनिकेशन टेंसेस बट इन बोथ कंडीशंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. Module 2, Part 2, Negation in Spoken English. It's very important for you to learn how to negate in spoken English. कभी कभार किसी ऑर्डर को ना करने के लिए कहना पड़ता है, कभी कभार कुछ एक्शंस की नफी बताई जाती है, कभी कभार हमें निगोशिएट करना पड़ता है अपनी कम्युनिकेशन में, स्पेशली द पीपल हु आर इन जॉब्स, हु आर डूइंग जॉब्स. निगेशन की स्किल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. So how can you use tenses and negation in spoken English in your workplaces? किस तरीके से आप negotiate करके या verbally situations को handle कर सकते हैं? This is what we would be learning. This is what we would be practicing in our second module. Third module, asking and answering questions. Daily life में, daily basis की conversations में हम सवाल भी पूछते हैं और हमें उनके answers भी देने पड़ते हैं.
बहुत सारी कंडीशंस में द वे यू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन सिचुएशन टेल्स अबाउट यू, बताता है व्हाट इज योर कैपेबिलिटी, द वे यू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन. सो वी आर गोइंग टू बी वर्किंग ऑन दिस वीक थिंग, जो हमारी कम्युनिकेशन का सबसे वीक प्रॉब्लम है, जो सबसे वीक पॉइंट है हमारा, दैट वी डोंट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू सिचुएशंस जो कि ट्रिकी होती हैं, जिसमें हम नर्वस हो जाते हैं, सिचुएशंस जिसको हम टैकल नहीं कर पाते और अग्रेसिव हो जाते हैं, सिचुएशंस जिसमें हमें अल्टरनेट ढूंढने का मौका नहीं मिलता, सिचुएशंस जिसमें हम अपने माइंड को छोड़कर एक्शंस को करने में प्रेफरेंस देते हैं. So we are going to be learning how to train our brain to respond to situations, asking and answering questions, response or giving responses. Question formation कैसे की जाती है real life interactions में. आप during conversations with your boss, with your colleagues, with your friends, with your family, questions कैसे form कर सकते हैं बातों को इंटरेस्टिंग बनाने में, interactions करते हुए. How can you form the questions? आर्टिकल्स और डिटरमाइनर्स क्या होते हैं कन्वर्सेशन में, हाउ टू यूज ए एंड बी और द इन योर कन्वर्सेशंस, कैसे आप इन आर्टिकल्स को यूज करेंगे, सब्जेक्ट को वेरीफाई कैसे करेंगे आर्टिकल्स के साथ. इन तमाम टेक्निकल पार्ट्स को, ये जो आपके स्ट्रक्चर्स के पार्ट हैं जिनको हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जिनकी वजह से हमें स्पीकिंग में हेजिटेशन होती है, जिसकी वजह से हम पहले बात करना नहीं चाहते, मीटिंग में सबसे पहले हम कभी भी अपना हाथ नहीं उठाते, हम नहीं चाहते कि हमसे कोई चीज स्टार्ट हो. व्हाई? बिकॉज ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग्स. हमें नॉलेज नहीं है, हमने प्रैक्टिस नहीं किया, हमें कंफ्यूजन है आर्टिकल्स में, डिटरमाइनर्स में, हमें कन्वर्सेट करना नहीं आता, हमें एक्सप्लेन करना नहीं आता. सो वी विल बी वर्किंग ऑन ऑल दीज थिंग्स. आपकी कम्युनिकेशन को पार्ट बाय पार्ट, आपके तमाम स्ट्रॉन्ग्स एंड वीक एरियाज को सामने रखते हुए, this training will help you out. This training and the practices it has involved in it will help you out in becoming a better speaker. Module number 4, modality and conditionals in speech. Can, could, would, should, advices देने के लिए, commands देने के लिए, permissions लेने के लिए हमें modalities को use करना पड़ता है, conditionals को use करना पड़ता है. कैन की जगह आप लोग शुड यूज कर देते हैं. बहुत दफा ऐसा होता है कि इंग्लिश बोलते वक्त हम लोग मोडालिटीज को, परमिशन वाली मोडालिटीज को कमांड वाले मोडालिटीज के साथ मिक्स कर देते हैं. सो आइडिया समझ में नहीं आता. पहली बात जो बेसिक चीज है आपकी अबाउट स्पोकन इंग्लिश इज दिस, that you need to understand आपका और कोई गोल है ही नहीं सिवाय इसके that your receiver, the person you are talking to, gets your message. So, अगर आपके मैसेज में मालूम ही नहीं हो रहा कि किस चीज के बारे में बात की जा रही है, अगर आपके मैसेजेस में पता ही नहीं चल रहा कि आप परमिशन मांगना चाह रहे हैं आया, या आप कमांड देना चाह रहे हैं, या आप एडवाइस देना चाह रहे हैं, या आप अपनी सजेशन पुट करना चाह रहे हैं, तो कोई आपकी कन्वर्सेशन को सीरियसली क्यों लेगा, कोई आपके मैसेज को क्यों सुनेगा. आपकी जब इट्स नॉट अबाउट योर लैंग्वेज, इट्स अबाउट द वे यू स्पीक. जब आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, जब आप में एतमाद ही नहीं है, जब आपको पता है, जब आप ऑलरेडी कंफ्यूज हैं कि मैं यहाँ कैन यूज करूँ या शुड यूज करूँ या वुड यूज करूँ या कुड यूज करूँ, how would from where the confidence would come then? So we are going to be working on conditionals, on modalities in spoken English. Real life scenarios को predict करेंगे, real life situations आपको दी जाएंगे during the classes, जिसमें आप can को, could को use करेंगे, should को advices में use करेंगे और बताएंगे use करके कि कैसे आप real life में modalities को use करके एक confident speaker बन सकते हैं. मॉड्यूल नंबर 5 की तरफ चलते हैं. जब हमने फाउंडेशंस ऑफ ग्रामर को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल प्रैक्टिस किया, कम्युनिकेशन के वीक एरियाज को, इंटीग्रल एरियाज को जब हमने प्रैक्टिस किया है, तो अब हम थोड़ा एडवांस की तरफ जाएंगे. नाउ वी आर गोइंग टू बी स्ट्रक्चरिंग द कन्वर्सेशंस विद कनेक्टर्स. कनेक्टर्स क्या हैं, आइडियाज को कनेक्ट कैसे किया जाता है, कंजक्शंस, छोटे से वर्ड्स हैं, बट, एंड, इफ कैसे यूज होंगे, prepositions कैसे प्लेस होंगी, ऐसे वर्ड्स जो पोजीशंस के बारे में बात करते हैं, इन, आउट, इनसाइड, कब यूज करें, एट को कैसे इस्तेमाल करें कन्वर्सेशंस में. मॉड्यूल नंबर 5 आपको टीच करेगा कि आपकी कन्वर्सेशंस को स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है, कन्वर्सेशन को कैसे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक पिरामिड है हमारा लैंग्वेज का, जिसमें हम
इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से मूव आउट करते हैं लेस इम्पोर्टेंट की तरफ, सो इस इन्वर्टेड पैरामिड को कैसे लर्न करेंगे हम, हमें स्ट्रक्चरिंग करना कैसे आएगी, इम्पोर्टेंट बात को कब कहाँ कैसे करना है, कैसे स्ट्रक्चर के साथ बोलना है, मॉड्यूल नंबर 5 आपको सिखाएगा. So those who have joined me from all over the Pakistan will learn how to do structuring in conversations, how to connect your ideas in your conversations. लोगों से बात करते वक्त different ideas पे कैसे बात करें और एक idea से दूसरे idea में कैसे shift हों. We are going to be learning this. Using prepositions in conversations. Prepositions क्या हैं? Placements हैं. कैसे आप positions को show करते हैं using these small words. We are going to be learning them as well. तो जब हमें कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना आ गया, हमें कन्वर्सेशन को स्ट्रक्चर करना आ गया, हमें कनेक्टर्स के साथ आइडियाज को कनेक्ट करना आ गया, हमें बात को शुरू करना आ गया, तो अब हम जाएंगे अपनी स्पीच की तरफ. बिल्डिंग डिस्क्रिप्टिव एंड फ्लूइड स्पीच. एक ऐसी स्पीच जो इंतहाई स्मूथ है, जहां पे आपका प्रोनाउंसिएशन लेवल बेहतर हो चुका है, जहां पे आप प्रोनाउंस को प्रॉपर तरीके से यूज करते हैं, एक इजी स्मूथ कन्वर्सेशन को लेकर चल सकते हैं. बिकॉज नाउ यू आर कॉन्फिडेंट, नाउ यू नो कि आर्टिकल्स प्रेपोजिशंस कहाँ इस्तेमाल होंगे, आइडियाज कनेक्ट कैसे होंगे, स्पीच स्ट्रक्चर्ड कैसे होगी, एडजेक्टिव्स कैसे इस्तेमाल होंगे, एडवर्ब्स कैसे इस्तेमाल होंगे. डिस्क्रिप्टिव आपकी लैंग्वेज का वो लेवल है जो आप तब अचीव करते हैं जब आप आइडियाज को जोड़ना सीख जाते हैं. जैसे मैंने एक खूबसूरत शाम देखी है, मैं बाहर निकली हूँ, वॉक के लिए निकली हूँ, एंड देयर इज वेरी ब्यूटीफुल सीन आउटसाइड. अब मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूंगी जब मुझे पता है कि उस दरख्त की पोजीशन कहाँ पे है, वो बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, किस किस्म की आवाजें मैं सुन सकती हूँ, किस किस्म की इन्वायरमेंट को मैं फील कर सकती हूँ. सो जब आप इन चीजों को डिस्क्रिप्टिव हालत में लेकर जा सकते हैं, जब आप इन चीजों को, उन सीन्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, तब आप लैंग्वेज के प्रो एडवांस लेवल तक पहुंचते हैं. हमारे पास लेवल्स हैं लैंग्वेज में, नो दैट ABC. सो A से C तक का सफर हम तभी तय कर सकते हैं जब हम अपनी स्पीच को, आइडियाज को कनेक्ट करना सीख जाते हैं और सीन्स को डिस्क्राइब करना जान जाते हैं. सीन्स को डिस्क्राइब करने में ग्रामर में जो दो फीचर्स हमें हेल्प करते हैं वो एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स हैं. सो एडवर्ब्स हमें हेल्प करेंगे ऐसे एक्शंस को मॉडिफाई करने में, और एडजेक्टिव्स हमें हेल्प करेंगे नाउन्स को मॉडिफाई करने में, नाउन्स को ब्यूटीफुल बनाने में. ठीक है, सो वो बच्ची कैसी है, ब्यूटीफुल है. वो लड़का कैसा है, वाइज है. वो जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो कैसे एक्शंस परफॉर्म करते हैं, हाउ द एक्शन इज परफॉर्म, एडवर्ब्स हमें बताएगा. इन छोटे छोटे फीचर्स पे महारत हासिल करने के बाद ही आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनते हैं. हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है लैंग्वेज में, तो चाहे टॉपिक छोटा लग रहा हो, आसान लग रहा हो, पर है वो प्राइम इंपॉर्टेंस का. इसी बात को समझाने के लिए ये पूरा मॉड्यूल आपका डिवाइड हुआ है अकॉर्डिंग टू द सीन्स एंड सिनेरियोस. मॉड्यूल नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जहां पर हमारी फ्रेजल वर्ब्स की बारी आती है. फ्रेजल वर्ब्स क्या है? फ्रेजल वर्ब्स आपकी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज को बेहतर बनाने में, आपकी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने में, आपको एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर दिखाने में बहुत हेल्प आउट करते हैं. 13th लेक्चर आपको हेल्प आउट करेगा अंडरस्टैंड करने में और यूज करने में फ्रेजल वर्ब्स को. क्यों? क्योंकि मॉड्यूल नंबर 7 में आप प्रैक्टिस करें. मॉड्यूल नंबर 7 से पहले वाले मॉड्यूल्स में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता 10, 15, 20, 25 फ्रेजल वर्ड्स की लिस्ट उर्दू सेंटेंसेस के मीनिंग्स के साथ आपके साथ शेयर की जाएगी. बाय मॉड्यूल नंबर 7 आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपनी स्पीचेस में फ्रेजल वर्ड्स को यूज कर सकेंगे. रिपोर्टेड स्पीच इन डेली इंटरेक्शन. किस तरीके से डेली इंटरेक्शन में आप डायलॉग्स को सुनकर एक्टिवली स्पीच कर सकते हैं कि उसने ये कहा था ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, जिसको आप रिपोर्ट करें. सो इस पूरे अंदाज को मास्टर करेंगे हम टिल मॉड्यूल नंबर 7. मॉड्यूल नंबर 8 की तरफ चलते हैं. फॉर्मेलिटी एंड पोलाइटनेस इन कम्युनिकेशन. जब बोलना सीख जाएंगे तो हम अंदाज पे काम करेंगे, यानी पोलाइटनेस पे काम करेंगे. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पोलाइट हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग नाइस हो, सुनने वाले का आपको दिल करे कि वो आपको देर तक सुनता रहे. So we are going to be learning those ethics, those things that will help to form or beautify your communication. Formalities and politeness. किस तरीके से प्लीज कहा जाता है, किन मौकों पर आपको प्लीज कहना है, पोलाइटनेस कैसे आएगी लैंग्वेज में, आराम से टोन्स कैसे होनी चाहिए, इंटोनेशनल पैटर्न क्या होता है, आवाज को कब स्ट्रेस में लेकर आना है, सिलेबल्स को कब प्रोनाउंस करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है.
So by module number 5, you'll be able to speak in a nice way as a good confident speaker. So confidence के साथ साथ तमीज, रिस्पेक्ट और पोलाइटनेस भी सीखेंगे हम टिल मॉड्यूल नंबर 8. So आज के चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं. I hope that you have learned about you have understood the course outline. Am I hello? Yes, people. So did you understand the course outline? Yes, very good. Thank you very much for being involved. स्पीकर्स जो अपनी लैंग्वेज को बेहतर बनाना चाहते हैं उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि वो इंगेज रहें. आपसे कुछ पूछा जाए, सवाल पूछा जाए तो जवाब दीजिए. नो मैटर आपका लैंग्वेज का ग्रामर जितना भी स्ट्रॉन्ग, वीक या जिस भी लेवल पर है, आप लोग बोलें जरूर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोशिश करते रहें. चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं. मॉड्यूल नंबर 1 क्या है हमारा? रोल ऑफ ग्रामर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ग्रामर क्यों मैटर करती है आपकी स्पीकिंग में? Because it organizes our thoughts. Because ये rules है ना, और ये rules help out करते हैं हमारी thoughts को organize करने में, ideas को communicate करने में, misunderstandings को avoid करने में. ठीक है? So grammar matters a lot. For example, अगर हम tenses को mix up कर देते हैं, listener तो confuse हो जाएगा कि action आखिर हुआ कब था. Articles मैंने ठीक से use नहीं किए, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स का ख्याल मैंने नहीं रखा और ए की जगह एन और एन की जगह ए पुट कर दिया. मुझे मालूम नहीं था तो जहां एन लगाना था वहां मैंने दी भी लगा दिया. सो पता ही नहीं चलेगा कि इंपॉर्टेंट चीज कहाँ थी, वाउल कहाँ था, एन कहाँ लगना था, सब्जेक्ट क्या था. सो एक एक चीज कनेक्टेड है. टेंसेस को मिक्सअप करके, स्ट्रक्चर्स को मिक्सअप करके आप इंपॉर्टेंट गोल को मिस कर जाते हैं. जब आपके रिसीवर को आपके मैसेज के बारे में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगी तो क्या खाक बात कर पाएंगे आप. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ग्रामर को समझें, उसकी बेसिस के साथ समझें. सो बहुत ही सिंपल सा लेक्चर है आज का. बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं. हम सीखेंगे कि एक सेंटेंस में आखिर बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है. आपका सेंटेंस डिवाइड होता है माय डियर स्टूडेंट्स 3 पार्ट्स में. वी हैव अ सब्जेक्ट, वी हैव अ वर्ब एंड देन वी हैव एन ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज द पर्सन और द थिंग हु इज परफॉर्मिंग एन एक्शन. मैं बात कर रही हूँ आपसे. I am teaching you. I am who? I am Miss Myra. What's my gender? I'm a female. So she is teaching the students of LWE. Now this she, my subject क्या है? Action कौन perform कर रहा है? Miss Myra. क्या action perform कर रही है? Verb हमें बताता है. She is teaching. Right now मैं क्या कर रही हूँ? I'm teaching you people. I'm trying to teach you to improve your spoken English. ऐसे ये ऑब्जेक्ट क्या है? आप सब लोग जो मेरे इस एक्शन को रिसीव कर रहे हैं, कौन है ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में? कौन है ऑब्जेक्ट? क्या ये लैपटॉप ये ऑब्जेक्ट है? क्या मेरा माइक्रोफोन ये ऑब्जेक्ट है? क्या इंटरनेट एक ऑब्जेक्ट है? या आप लोग मेरे रिसीवर्स? यस, यू पीपल आर द ऑब्जेक्ट्स. स्टूडेंट्स आर द ऑब्जेक्ट्स. So a basic sentence structure consists of a subject, a verb, and an object. Let's explore this with some examples. Example number 1, she reads books. Now subject, she, verbs, reads, object, books. बहुत simple sentence है. She कौन है? The person who is performing an action. Books, reading is an object, is an action, and books are the object. Now they are watching a movie. What is they here? They इस sentence में क्या है? Can anyone tell me? Subject, very good. Are watching. What is are watching? Verb. Are यहाँ पे हमारा helping verb है और watching हमारा main verb है. अब movie, action कौन receive कर रहा है? Movie is an object. Very good. Well done. English has a fixed word order. It means that if you change the verb order, verb subject order आप change करते हैं तो पूरा का पूरा sentence confuse हो जाता है. For example, the cat chased the mouse. बिल्ली mouse का पीछा करती है. बिल्ली किसका पीछा करती है? चूहे का पीछा करती है. अब अगर मैं इसको change कर दूं, यहाँ मैं object की जगह subject और subject की जगह object ले आऊं, तो क्या होगा? इनकरेक्ट वर्ड ऑर्डर के साथ मैं अपना पूरा का पूरा मैसेज ही खराब कर दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, द माउस चेज द कैट.
And it never happens unless and until the mouse is very powerful or has some super magics, right? So a sentence has a fixed structure. A subject has to come at the beginning, an object has to come at the last, and a verb has to stand in center, showing action. What are negative sentences? स्पोकन कम्युनिकेशन में अक्सर औकात हमें नेगेटिव सेंटेंसेस यूज करने पड़ते हैं ताकि किसी रिसीवर की आइडियाज को हम निगेट कर सकें, हम नॉट बोल सकें. इसके लिए हम यूज करते हैं नॉट या डू एज एन ऑक्सिलरी वर्ब्स. फॉर एग्जाम्पल, ही डजंट लाइक कॉफी. अब he does not like coffee. What is this? He is a subject here. Does is our auxiliary verb here and not is a negation here. So अगर आपने किसी चीज को negate करना है तो आप auxiliary verbs को not के साथ attach करते हैं to show that you are negating the idea. Using questions in conversations. Questions an essential part of conversations होते हैं. So if you are asking a question, आपके dialogues में जो questions का basic structure होगा तो वो कैसा होगा? Do you like ice cream? अब ये जो do था जो पहले subject के बाद था वो subject से पहले आ चुका है और यहाँ पर हमारे end में एक question mark है showing that this is what? This is a question statement. So in this chapter, हमने basic sentence structure को explore किया है. We have learned how to, start a conversation, how to write a sentence, how to speak a sentence. Now I'm going to give you some exercises. Are you ready for the assignment part? Before the assignment part, एक practice session की तरफ चलते हैं. I want you people to write one question statement, one negative statement, and one simple statement, simple sentence. So what is your habit? आप daily routine में क्या करते हैं? For example, I go out for a walk. I read books. एक simple statement. Then I want you to give me a नेगेटिव सेंटेंस, वो चीज जो आप करना पसंद नहीं करते, और एक क्वेश्चन स्टेटमेंट चाहिए मुझे. सो क्या आप ये कर पाएंगे? चैट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपने रिस्पॉन्सेज मुझे वहां पे सबमिट करा सकते हैं. सो प्लीज बी क्विक डियर स्टूडेंट्स. Yes. She goes to the college. Very good. My hobby is to play carom board. Do I like coffee? Very good, Vajiha. Very nice. I want a negative sentence as well. Can you give me a negative sentence? I don't like to watch a movie. Very good. That's perfect. Madam, time is up. Yes, sir. So these are your assignment notes, dear students. ये assignment notes आपको help out करेंगे, assignments में मौजूद questions आपको help out करेंगे to grasp this concept, to practically practice this concept. So सबसे पहले part 1 में आपने sentence का structure बनाना है, identify करना है subject यहाँ क्या है, verb क्या है और object क्या है. There are 5 questions in this part. Part number 2 word order में है, यानी आपने in given sentences का incorrect word order that have correct the following sentences that have incorrect word order. So जिसका word order correct नहीं है उसको आप ठीक करेंगे, rewrite करेंगे. Negative sentences को form करेंगे, convert करेंगे affirmative यानी simple sentences को into negative sentences. He likes to swim, he doesn't like to swim. Part 4 forming questions. So you have to turn the following statements into questions. You're feeling tired, you're reading, you enjoy reading books. इनको आप question statements में change करेंगे, ठीक है? Application bonus. एक सेंटेंस चाहिए मुझे जो आपकी हैबिचुअल एक्शन को डिस्क्राइब करता हो, यानी आपकी हैबिट्स के बारे में बताता हो. एक सेंटेंस मुझे चाहिए जो आपके ऑनगोइंग एक्शंस के बारे में बात कर रहा हो, एंड आई वांट वन सेंटेंस जो आपके क्वेश्चन को, जो कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो. सो 3 सेंटेंसेस मुझे चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस वर्कशीट, जिसमें आप अपने हैबिट को डिस्कस करेंगे,
इस वक्त जो ongoing action हो रहा है, for example, I am listening to Miss Myra, ये एक ongoing action है. So I want 3 sentences from you. One that describes your habitual action. One that talks about the action which is happening around you. It's an ongoing action. And one sentence, one question from your side. So I will be looking forward to all the assignments which you people will be sharing with me on the Facebook group of LWE. And I hope that you have enjoyed today's session and you have liked today's sessions as well. It has benefited